Dear children, today we will do Unit 4 poem Rain in our Marigold textbook. Hello, a very good morning to all my dear children. I hope everyone is in good health and spirit. Dear children, today we will start a new lesson in our Marigold book 2. All of you will open your textbooks on page number 64 and unit is your unit 4. This is your unit 4. First of all, in this unit there is a new poem about the rain. As you all know that this is your rainy season, monsoon has already started. So today we are going to do a lovely little poem on rain. When we go out in rain, we use umbrellas, raincoats, gumboots, we make paper boats and sail it in the water in small puddles. We splash the water, we jump into those puddles and enjoy the monsoon. उसके अलावा मानसून में हम जो है कॉर्न यानी कि भुट्टा खाने के हमको बहुत मज़ा आता है. गरम गरम पकौड़ियाँ खाते हैं हम लोग. We all love to eat those lovely spicy snacks during the rainy season and we enjoy it also. We play and enjoy the rains. So let us first of all write today's date. Today is 6/8/2021 and you will write here classwork and then we'll recite the poem. Unit 4. Let's recite this poem, that is rain. The rain is raining all around. It falls on fields and trees. It rains on umbrellas here and on the ships at the sea. This is a small little 4-line poem which is written by, or the poet is Robert Louis Stevenson, better known as R.L. Stevenson. पोएट जो है उनका नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, जिसको हम R.L. स्टीवनसन के नाम से अच्छे से जानते हैं. सो द पोएम इज़ अबाउट रेन. बारिश में क्या करते हैं? द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ जो है वो बारिश हो रही है. इट फॉल्स ऑन द फील्ड्स एंड ट्री, मतलब खेतों में भी बारिश गिर रही है, पेड़ों के ऊपर भी बारिश गिर रही है. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर, और यहाँ पर अगर हम छतरी लेकर, अगर अम्ब्रेला मतलब छतरी लेकर अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो बारिश किस पे गिर रही है? बारिश अम्ब्रेला पे गिर रही है. एंड ऑन द शिप्स एट सी, और सी में यानी समुद्र में जो शिप्स सेल कर रहे हैं उनके ऊपर भी बारिश गिर रही है. तो चारों तरफ कैसा है? बारिश ही बारिश है. सब जगह बारिश का पानी, जो जो चीज़ें हैं हर चीज़ पर बारिश का पानी जो है वो गिर रहा है. तो सारी चीज़ें जो है नेचर की हो या मैनमेड हो, सारी चीज़ें बारिश के पानी से भीगकर एकदम हैप्पी हो गई है. आपने कभी ग्रीन पेड़ पौधों को अगर देखा होगा तो जब बारिश गिरती है तो बारिश के बाद जो पेड़ होते हैं वो एकदम लश ग्रीन, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर अपीयर्स ऑन द लीव्स ऑफ द ट्रीज. एवरीवेयर यू कैन सी द ग्रीन एवरीवेयर. द नेचर इज़ एट इट्स बेस्ट. बारिश के सीज़न में हमेशा जो होता है नेचर जो होता है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है. चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है. एंड बर्ड्स ऑल्सो लुक हैप्पी सिंगिंग sitting on the trees. So you can see in this picture also the children are enjoying the rain, wearing raincoat, gumboots and taking the umbrellas. Here also you can see a girl is looking very happy playing in the puddle, यानी कि पानी जो होते हैं छोटे छोटे गड्ढे जो पानी के भर जाते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं? छलांग लगाते हैं और पानी को उड़ाते हैं और उससे खेलते हैं. तो इस तरीके से बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं रेनी सीजन को. नाउ देयर आर सर्टेन न्यू वर्ड्स इन दिस. व्हाट आर दोस न्यू वर्ड्स? लेट अस सी दैट न्यू वर्ड्स. FIELD फील्ड, UMBRELLAS umbrellas and SHIPS ships. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्टेन वर्ड्स जो है मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, जैसे रेनिंग, अराउंड, फील्ड, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. तो ये सारे वर्ड आपको अपने टेक्स्ट बुक में यू हैव टू अंडरलाइन. RAINING रेनिंग, AROUND
FIELD field, UMBRELLAS umbrellas, and SHIPS ships. And this is the name of the poet, ROBERT Robert, LOUIS Lewis, and STEVENSON Stevenson. So all these names you have to underline. These are your hard words. Now next on page number, this was your page number 54, sorry I said 64, it is page number 54, and now we move on to page number 55 where you have the question answer part. Now this, where does the rain fall, all these question answers I have written in the notebook, so that I will be telling you or explaining you from the notebook only. तो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सारे मैंने नोटबुक में लिखे हुए हैं, तो वो नोटबुक में से एक्सप्लेन करूँगी. नाउ वी मूव ऑन टू, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक में जो है इस तरीके से जैसे मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं वैसे आपको जो है टेक्स्ट बुक में लिखने हैं. जैसे वेयर डज द रेन फॉल, ऑन फील्ड, ट्री, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. व्हाट डू पीपल यूज इन रेन व्हेन इट रेन्स, सो दे कैरी अम्ब्रेलाज एंड वेयर रेन कोट्स. उसके बाद लेट्स टॉक, what do you do on a rainy day? I wear a raincoat and enjoy the rain. Then how do you keep yourself dry in the rain? I wear a raincoat to keep myself dry in the rain. उसके बाद है डू यू लाइक टू प्ले इन वाटर, येस आई लाइक टू प्ले इन वाटर. से व्हाट थिंग्स लिव इन वाटर, हमको यहाँ पर उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं या जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश, फ्रॉग, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा लिव्स इन वाटर. उसके बाद लुक, लेट्स लिसन. हैव यू हर्ड द साउंड ऑफ रेनफॉल, अब जब बारिश गिरती है तो आपने बारिश के पानी के गिरने की आवाज़, बूंदों की आवाज़ सुनी है, येस आई हैव. What sound does the rain make on umbrella? जब बारिश की बूंदें अम्ब्रेला के ऊपर गिरती हैं तो कैसी आवाज़ होती है, पिट पैट, टप 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 ऐसे आवाज़ आती है ना. What sound does the rain make on the leaves of the trees? जब पेड़ों के पत्तों पर गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है, टिप टिप. What sound does the rain make on your window? Make all these sounds yourself. हमको अपने आप ही जब बारिश की बूंदें हमारी खिड़की पर गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है, ज़ोर से, ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ आती है. जब बारिश की बूंदें जो है हमारे खिड़की के मतलब ग्लास पर पड़ती है तो क्या आता है, पिटर पैटर, जोर जोर से टप 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 की आवाज़ें आती हैं, विच इज वी call it as pitter patter. Now we move on to page number 56. Now here there's a small story about the clouds. अब बारिश कैसे आती है, बारिश तभी आती है जब बादल होते हैं. और बादल कैसे बनते हैं, जब ज़मीन में से जो पानी होता है, रिवर्स का, पॉन्ड्स का, लेक का, सी का, ये सारा पानी जो है गर्मी की, सन की गर्मी की वजह से जब भाप बन के ऊपर आसमान में जाता है, स्काई में जाता है, तो वो इकट्ठा होकर क्लाउड्स बनते हैं. वो क्या बन जाते हैं, वो पानी जो है वो भाप बन के बादल बन जाता है. और जब बहुत सारा पानी ऐसे भाप बन के बादल में इकट्ठा हो जाता है तो जब बादल बड़ा सा हो जाता है तो वापस वो पानी जो है वो बारिश, क्लाउड्स जो है वो रेन करते हैं और वो सारा पानी वापस हमारे अर्थ पर आ जाता है. सो हियर दिस इज योर पेज नंबर 56, काउंटिंग क्लाउड्स. यहाँ पर हमको क्या करना है, क्लाउड्स को, बादल को काउंट करना है. कंप्लीट द स्टोरी, यहाँ पे जो छोटी सी स्टोरी दी हुई है इसको हमको कंप्लीट करना है. एज वन लिटिल वाइट क्लाउड floated in the sky one day, another little cloud called out, come let's play. एक दिन क्या हुआ, एक बादल जो था, छोटा सा एक बादल आकाश में फ्लोट मतलब आकाश में तैर रहा था, और तभी वहाँ पर एक छोटा सा और बादल आया और उसने उससे कहा चलो हम सब खेलते हैं, कम लेट अस प्ले. तो कितने बादल हो गए, 1 और 1 2 क्लाउड्स हो गए. कितने क्लाउड्स हो गए, 2 क्लाउड्स हो गए. नाउ एज 2 लिटिल क्लाउड्स डांस्ड इन द स्काई सो ब्लू, अनदर लिटिल क्लाउड आस्क्ड कैन आई जॉइन यू.
अब जब दो छोटे छोटे बादल, पहला एक बादल था उसके साथ दूसरे बादल ने ज्वाइन किया, और जब दो छोटे बादल आपस में जब खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, स्काई वॉज ब्लू। व्हाट वॉज द कलर ऑफ द स्काई देन? द कलर ऑफ द स्काई वॉज ब्लू। तो एक अनदर लिटिल क्लाउड, एक और छोटा सा क्लाउड, ये जो है छोटा, देखिए ये 1 और 2 क्लाउड है। अब ये छोटा सा क्लाउड आ आया और उसने पूछा कि कैन आई जॉइन यू, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ या डांस कर सकता हूँ। As 3 little clouds held hands in the sky, the wind blew another little cloud very close by. अब जब 3 छोटे छोटे बादल आपस में खेल रहे थे, डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तभी जोर से हवा चली। द विंड ब्लू, हवा चली और उन्होंने एक छोटा सा एक और बादल जो है उनकी तरफ भेज दिया। यू कैन सी 1 2 3 के बाद 1 2 3 और ये 4th क्लाउड जो है उसने इसको ज्वाइन किया। छोटा सा एक, ये 1 2 3 तो थे, अब यहाँ से एक जो है हवा से ये वाला 4th क्लाउड जो है यहाँ पर ज्वाइन हो गया। हवा चली और हवा ने उस छोटे से एक और बादल को इन 3 क्लाउड्स के साथ भेज दिया। तो अब हमारे पास कितने क्लाउड्स हो गए? 1 2 3 एंड 4 क्लाउड्स हो गए। नाउ पेज नंबर 57। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्लाउड्स दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5th क्लाउड उनको ज्वाइन कर रहा है। एज 4 लिटिल क्लाउड्स डिसाइडेड व्हाट टू डू, अनदर लिटिल क्लाउड joined them very quietly too. अब जब 4 क्लाउड्स, देखो आप ये देख सकते हैं कि 4 क्लाउड्स आपस में खेल रहे हैं और तभी एक 5th क्लाउड जो है धीमे से आकर उनको उनके खेल में उनको ज्वाइन करता है। क्वाइटली टू मतलब बिना आवाज़ के एकदम आकर शांति से जो है वो उनको ज्वाइन करता है। तो अब हमारे पास टोटल कितने क्लाउड्स हो गए? 5 क्लाउड्स हो गए। हाउ मेनी क्लाउड्स वी हैव नाउ? 1 2 3 4 एंड 5 क्लाउड्स आते हैं। क्योंकि 4 क्लाउड्स आपस में सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, हम 4 हो गए तो अब हम क्या करें, तो अभी एक 5th क्लाउड ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। नाउ दिस इज रिटन बाय सैंथनी गोविंदन। उन्होंने ये लिखा हुआ है छोटा सा स्टोरी। अब हमको यहाँ पर कंप्लीट करनी है ये स्टोरी। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 क्लाउड्स हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करना है? नाउ राइट व्हाट द 5th एंड द 6th क्लाउड डिड। यहाँ पर 4 क्लाउड्स तक की स्टोरी जो है हमको दी हुई है। अब हमको 5th और 6th क्लाउड की स्टोरी हमको खुद ही बनाकर लिखनी है। As 5 little clouds were happy and gay, मतलब 5 क्लाउड्स मिलकर जो है मजे कर रहे थे, खुश थे। 1 little cloud came quietly to play, तो जो है एक छोटा सा जो क्लाउड था उनके साथ जो है आकर जुड़ गया। अब यहाँ पर जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो इट हैज़ टू बी इन द राइमिंग। ये स्टोरी है लेकिन स्टोरी थोड़ा पोएट्री फॉर्म में है, तो जो हम 5th और 6th क्लाउड के लिए बनाएंगे उसमें भी ऐसा रिदमिक वर्ड्स वी हैव टू यूज़ टू मैच विथ ईच अदर। एक रिदम आर सेट होना चाहिए पोएम में जैसे होता है, तो उस हिसाब से हम वर्ड्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर as 6 little clouds were ready to sing, all the clouds sang ringa ringa ring। और जब 6th क्लाउड 5th क्लाउड के साथ जब 6th क्लाउड ऐड हो गया तो 6th क्लाउड जैसे ही गाने जा रहा था तो सारे बादल मिलकर क्या गाने लगे? रिंगा रिंगा रिंग। जैसे हम रिंगा रिंगा रोजेस खेलते हैं वैसे क्लाउड्स भी खेलने लगे। So dear children, this was your page number 57. Now we move on to page number 58. Now what is page number 58 is, here you have a little bit of textual exercise, word fun. यहाँ पर आपको कुछ words के साथ जो है आपको puzzle दी हुई है that you have to complete. Fill in the letters to complete the crossword puzzles. Use the pictures as clues. यहाँ पर आपको कुछ 1 2 3 4 5 एंड 6 क्रॉसवर्ड पजल्स दिए हुए। यू कैन सी दिस इज द कंप्लीट क्रॉसवर्ड पजल। क्रॉसवर्ड पजल का मतलब ये है कि कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं और कुछ वर्ड्स आपको ऐड करके एक वर्ड कंप्लीट बनाना है। और इसमें वर्ड्स जो होते हैं कुछ वर्ड्स कॉमन होते हैं और पजल जो होती क्रॉसवर्ड होती है ऐसे जो होती है
ये अक्रॉस और ये डाउन होती है, इस तरीके से होता है। दिस इज अक्रॉस एंड दिस इज डाउन। अब यहाँ पर जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, देयर आर सर्टेन पिक्चर्स गिवन इन फ्रॉम विच यू हैव टू मेक द वर्ड, सो वी हैव टू यूज दिस पिक्चर्स एज द क्लूज। हमको ये क्लू मतलब देख के समझना है कि ये वर्ड कौन सा होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर विंड का दिया हुआ है, यहाँ पर स्नो का दिया हुआ है, ये क्लाउड का है, फिर ये लाइट, ये वाला लाइट है, यहाँ पर डस्ट है, यहाँ पर सन है मतलब कि हीट है, स्टार है और ये मून है। तो इस तरीके से हमको जो है वो, और ये जो है ये सन का दिया हुआ है और ये हीट का दिया हुआ है। हीट का मतलब आंख जो दिखाई है वो गर्मी देती है, दैट इज हीट। तो हमको कैसे लिखना है, फर्स्ट एस यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर डब्ल्यू दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट क्लू को ऐसे यूज करेंगे, SNOW स्नो। यहाँ पर हमने क्या लिखा, SNOW स्नो। अब डब्ल्यू को एंड किया, उसका पिक्चर यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, विंड वाला, तो हम यहाँ से डाउन करेंगे WIND विंड। और यहाँ पर साइड में हमको अलग से एक क्लू दिया हुआ है, दिस इज मून, सो MOON मून यहाँ पर हो जाएगा। उसके अलावा अब हम यहाँ पे सेकेंड क्लू देखते हैं, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ अ क्लाउड, ये बादल है, तो CLOUD क्लाउड। अब आप देख सकते हैं कि डी के अक्रॉस इन बिटवीन कोई नहीं है, तो यहाँ से नीचे डाउन नहीं होगा, लेकिन क्लाउड से नीचे डाउन होगा। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बल्ब विच शोज इट इज अ लाइट, ये लाइट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, LIGH और T इज ऑलरेडी गिवन लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द पिक्चर ऑफ ए डस्ट, मतलब जो धूल उड़ती है तो कैसे धूल के ऐसे बॉल्स बन जाते हैं, तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डस्ट। सो D इज ऑलरेडी गिवन एंड T इज ऑलरेडी गिवन, DUST डस्ट। अब यहाँ पर जो H है उससे यहाँ पर नीचे जो पिक्चर बना हुआ है फायर का विच गिव्स अस हीट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, HEAT हीट। H एंड T इज ऑलरेडी गिवन, हम E और A लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ जो पिक्चर है वो किसका है, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सन, तो सन यहाँ से लिखेंगे, S और N गिवन है, SUN सन। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्टार, तो डाउनवर्ड हम क्या लिखेंगे, ST दिया हुआ है, A लिखना है एंड R इज ऑलरेडी गिवन, सो STAR स्टार। तो इस तरीके से जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, लेट्स शेयर। लेट्स शेयर में व्हाट वुड यू कॉल दीज पिक्चर्स इन योर लैंग्वेज। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे मून का है, सन है, क्लाउड है एंड स्टार है। इनको आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, जैसे हमारी लैंग्वेज गुजराती है तो हम गुजराती में इसको क्या बोलेंगे, वो लिखना है। एंड नाउ लेबल द पिक्चर्स इन इंग्लिश, उसके बाद इन पिक्चर्स के इंग्लिश नेम्स भी लिखने हैं। दिस इज मून, तो हम गुजराती में व्हाट डू वी कॉल द मून एज चांदो, वी कॉल इट एज MOON मून। फिर ये क्या है, सूरज, गुजराती में हम सन को सूरज बोलते हैं, SUN सन इन इंग्लिश। देन दिस इज क्लाउड, सो वादड़, CLOUD क्लाउड। एंड स्टार का मतलब तारा, STAR स्टार, तो हम S निकाल देंगे, STAR स्टार। सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन द टेक्स्ट बुक। और ये एक्सरसाइज जहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, इसको आपको नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। अब इसके बाद जो है पेज नंबर 59 है। पेज नंबर 59 में है रिडल टाइम, मतलब एक ये पहेली है, तो इसमें हमको लिखना है, बताना है कि ये पहेली का आंसर क्या है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। I go up and down a lot, whether it is cold or hot. Sometimes I am on the ground, other times I am in the clouds. My name rhymes with daughter. I am your friend named Dash. अब यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है, क्या चीज़ है ये आपको दिख रहा है, छोटे छोटे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, छोटी छोटी बूंदें दिखाई हुई हैं। तो ये रिडल क्या कहता है, ये पहेली क्या कहती है कि आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, मैं ऊपर नीचे, मतलब पानी जब भाप बन के ऊपर जाता है और बारिश बन के नीचे आता है। वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट, चाहे ठंडी हो या गर्म हो। आई एम समटाइम्स ऑन द ग्राउंड, मैं कभी कभी ज़मीन पे होता हूँ, पानी ज़मीन पे भरा होता है, जैसे लेक्स वगैरह पॉन्ड्स है तो पानी कहाँ है, ज़मीन पे है। और समटाइम्स आई एम इन द क्लाउड, और बादल के अंदर क्या होता है, जब आकाश में होता है, ऊपर होता है तो बादल होते हैं और बादल के अंदर पानी होता है।
माई नेम राइम्स विथ वाटर। अब मेरा नाम जो है डॉटर के साथ जो है राइमिंग वर्ड में आता है ना, डॉटर, तो डॉटर के साथ राइम करता है मेरा नाम। आई एम योर फ्रेंड नेम्ड, सो आई एम योर फ्रेंड, टेल मी योर नेम, व्हाट इज माई नेम, माई नेम इज WATER, वाटर। तो मैं कौन हूँ, मैं वाटर हूँ, जो बादल के अंदर भी रहता है, ज़मीन के ऊपर भी रहता है, हॉट हो तो भी होता है, कोल्ड हो तो भी होता है, ज़मीन में भी होता है और आकाश में भी होता है, तो सब तरफ पानी होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर फिश टैंक। Look at this fish tank. Write 3 sentences on what you see. Draw some creatures in this tank. अब यहाँ पर जो एक फिश टैंक है, आप सबने घर के अंदर भी, बहुतों के घर के अंदर एक्वेरियम होगा ही, तो आपने वो देखा ही होगा। तो इस एक्वेरियम में आपने क्या देखा है वो आपको लिखना है, और यहाँ पर कुछ आप जो है फिशेस हैं, इस तरीके से आप फिश ड्रॉ करके कलर भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से थोड़े पेड़ पौधे भी आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। दिस इज अ लवली फिश टैंक, देयर आर कलरफुल फिश और फिशेज इन द टैंक, बहुत सारी कलरफुल फिशेज हैं टैंक के अंदर। फिर और क्या है, देयर आर वाटर प्लांट्स एंड बबल्स इन द वाटर, यहाँ पर छोटे छोटे वाटर प्लांट्स हैं, बबल्स यू कैन सी हियर, ये छोटे छोटे से बबल्स हैं जट यू कैन ड्रॉ इन द वाटर, बबल्स एंड स्टोन्स, STONES, स्टोन्स इन द वाटर। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ड्रॉ करके कुछ कलर भी फिशेस को करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 60। Now, dear children, on page number 60 is again a small little poem. Let's sing. This is again about the rain. Rain on the green grass, rain on the tree, and rain on the housetop, but not upon me. ये बच्चा क्या बोल रहा है कि घास पे भी जो है, ग्रास पे भी बारिश गिर रही है, ट्री पे भी बारिश गिर रही है, घर की छत पे भी बारिश गिर रही है, पर मेरे ऊपर बारिश नहीं गिर रही है। This was a small little nursery rhyme that we used to do. The words AWAY, away, DAY, day, play, PLAY, play are rhyming words. तो ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। वे, डे एंड प्ले आर राइमिंग वर्ड्स। नाउ कलर द वर्ड्स दैट राइम विथ। अब यहाँ पे हमको कलर करना है जो वर्ड्स राइम करते हैं। जैसे यहाँ पर रेड कलर दिया हुआ है, येलो कलर एंड ब्लू कलर दिया हुआ है। यहाँ जो है IN इन के साथ राइम करते हुए, DOW डाउन एंड NOT नॉट। तो इस हिसाब से हमको जो OWN वाले कलर येलो करने हैं, लास्ट में IN आएगा उसको हमको रेड करना है, और जहाँ पर लास्ट में OT वर्ड्स आएंगे वहाँ पर उनको ब्लू कलर करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेड किया हुआ है, जैसे PIN पिन, SPIN स्पिन, देन लास्ट वन इज FIN फिन, और यहाँ पर TIN टिन। तो IN वर्ड्स सब रेड कलर से हो गए। उसके बाद ब्लू कलर OT वाले, TOT डॉट, SPOT स्पॉट, देन HOT हॉट, COT कॉट, एंड लास्ट वन इज POT पॉट। These are all we have colored with the blue. आपको भी ऐसे ही crayons यूज करके करना है। Then OWN, DOWN डाउन है, मतलब OWN वर्ड्स येलो करने हैं। BROWN ब्राउन, CLOWN क्लाउन, GOWN गाउन, FROWN फ्राउन, देन CROWN क्राउन एंड DROWN ड्राउन। तो इस तरीके से आपको ये स्टार को कलर करना है। आई हैव रिटन हियर द वर्ड्स डॉट, स्पॉट, फ्राउन, ब्राउन, क्लाउन, गाउन, कॉट, हॉट पॉट, देन फिन, स्पिन, टिन, पिन, क्राउन एंड ड्राउन। तो इस तरीके से सारे मैंने जो वर्ड्स हैं ये जो है वो लिखे हुए हैं राइमिंग वर्ड्स। तो दिस वे यू हैव टू राइट दीज राइमिंग वर्ड्स इन योर टेक्स्ट बुक लाइक दिस। और उसके बाद ये हम नोटबुक में भी लिखेंगे वन टाइम। उस लास्ट वन इज़ योर पेज नंबर 61, और यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं। दिस इज़ योर लेट्स राइट। आई हैव रिटन राइट दिस इन द नोटबुक। ये आपको ब्लैंक्स के फॉर्म में नोटबुक में लिखना है। Look at these pictures and fill in the blanks from the words in the box. You can see here in the box the clues are given. ये जो है सारे sources of water दिए हुए हैं, हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है ये दिया हुआ है।
RIVER रिवर, POND पॉन्ड, SEAC एंड LAKE लेक। तो ये जो हमको दिया हुआ है ये सोर्सेज ऑफ वाटर जहाँ से हमको पानी मिलता है, एंड द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज द रिवर, जिससे ये सारी चीज़ें जो है पानी से भर जाते हैं ड्यूरिंग द मानसून। नाउ द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ शिप। द शिप इज सेलिंग ऑन द सी। शिप कहाँ पे सेल करता है? सी में। तो इन द ब्लैंक यू विल राइट हियर SEAC। The dash flows from the MOUNTAIN mountain। तो ये क्या फ्लो कर रहा है? दिस इज द रिवर, RIVER river flows from the mountains। नेक्स्ट इज द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। ये डक कहाँ स्विम कर रही है? एक पॉन्ड के अंदर। और लास्ट में द फ्रॉग लिव्स इन द LAKE लेक। So all these 4 blanks you are going to write in your notebook one time. This was your page number 61. Dear children, with this we finish our work in the textbook. You have to complete all these things in the textbook, और साथ में जैसे मैंने यहाँ पर textbook में लिखे हुए हैं words, वैसे ही आपको textbook में लिखने हैं। Now after that you are going to write this in your notebook one time. I hope, dear children, you have enjoyed this lesson of rain. Bye bye and have a nice day.